Now moving to theorem 6.2, which is actually the converse of basic proportionality theorem. जो basic proportionality theorem आपने पढ़ी पिछले वीडियोस में, उसी का कन्वर्स। ध्यान देना बेटा, थ्योरम बोलती क्या है? थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास है ट्रायंगल ए बी सी, अगर आपके पास ट्रायंगल ए बी जिसमें ई पॉइंट एक है ए बी पे और एफ पॉइंट एक है किस पे, सच दैट इन दो पॉइंट से हुआ क्या, ए ई डिवाइड बाय ई बी, ए ई डिवाइड बाय ई बी इज इक्वल टू व्हाट, ए एफ डिवाइड बाय। नाउ जो आपने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में प्रूव किया वो यहां पे क्यों है, the sides are the same ratio, two sides are the same, then आपको प्रूव क्या करना है कि जो ये EF है, E यहां से this EF is parallel to BC. This is what we need to prove. This actually converse of basic proportional theorem. What was given in basic proportional theorem वो यहां पे प्रूव करना है, ठीक? तो जो वहां पे प्रूव करना था वो इधर गिवन है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में इसको देखा गया है एक दो बार, सो उस क्लास से भी आप क्वेश्चन को फिर से गौर से समझोगे। इसे क्या करेंगे हम, कनेक्शन करके जोड़ेंगे। क्या हमें प्रूव करना है कि क्या ई एफ पैरेलल है बीसी को, ये प्रूव करना है ना। हम इसी कन्वर्स पे जाएंगे, हम इसका उल्टा करेंगे, हम बोलेंगे नहीं ई एफ पैरेलल नहीं है, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू बीसी, देन we take another point, for example this point, for example this point M, हम और एक पॉइंट लेते हैं, किस पे लिया मैंने वो पॉइंट AC पे, और हम कंसीडर करते हैं that EM is parallel to BC. This is by our supposition. By our supposition we are saying that EF is not parallel to BC, then we take another point M on AC such that we say EM is parallel to BC. ये हम सपोज कर रहे हैं बेटा। तो क्या लिया मैंने, take a point M on AC and let EM be parallel to BC. This is by our supposition beta. Actually we had to prove that EF is parallel to BC, but we are saying that EF is not parallel to BC, then EM is parallel to BC. Clear? This is by our supposition. चलो बेटा अब इसके प्रूफ पे आ जाते हैं। Now since by our supposition, हमारी सपोजिशन के हिसाब से EM is parallel to BC, हमारे सपोजिशन के हिसाब से we are saying that EM is parallel to BC, EM is parallel to BC. शाबाश, ध्यान देना बेटा, if EM is parallel to BC, therefore by basic proportionality theorem, अभी ना हमने किया वो पिछले वीडियोस में हमने किया, पिछले लेक्चर्स में हमने उसको किया, तो जब ये लाइन पैरेलल होगी, जब EF पैरेलल होगी BC को, तब AE डिवाइड बाय EB, therefore AE divided by EB will be equivalent to AM divided by M, ठीक है ना बेटा, और कॉल से स्पष्ट। When a line is drawn parallel to one side of a triangle, it divides the other two sides the same ratio. This is what basic proportional says, ठीक है ना बेटा। अगर EM पैरेलल है BC को, तब AE डिवाइड बाय EB बराबर होगा AM डिवाइड बाय MC, याद तक क्लियर है ना। But it is given क्या है बेटा, given क्या है, ये AE divided by EB is equivalent to AF divided by FC, our cos equation number second. This is given, ये हमने निकाला और ये क्वेश्चन में वहीं से दिया गया है। Now if I compare these two equation first and second, I will see the left hand side is equal, AE divided by EB, AE divided by, इनका right hand side में क्या होगा, we can write from first and second, from first and second can I say AM divided by M is equivalent to AF divided by F, ठीक। अब इसको एडिंग बोथ साइड्स करेंगे 1, एडिंग both sides by 1, so I write as AM divided by MC plus 1
is equivalent to AF divided by FC plus क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्योंकि यहाँ पे 1 अगर डिवाइड है इसका, सो AM प्लस AM प्लस MC डिवाइड बाय MC इज इक्वल टू AF प्लस FC डिवाइड बाय व्हाट F, ठीक है ना। ऐसी AM प्लस MC, AM प्लस MC, AM प्लस MC, AM प्लस MC, is it AC? AC, yes sir. AC divided by AC divided by MC is equivalent to what is this? AM plus FC, AM plus FC, so वो क्या आता है बेटा, वो आता है AC divided by FC, so I will take it like this, इसका रेसिप्रोकल मैं लेूं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, टेकिंग रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा बेटा, MC डिवाइड बाय AC, MC डिवाइड बाय इज इक्वल टू FC डिवाइड बाय FC डिवाइड बाय, सो AC कट हो जाएगा तो निकला क्या वहां से बेटा, MC इज इक्वल टू FC, ये निकला हमारा बस सीधा फिगर, हमें निकला कि हमारा कंक्लूजन ये निकला लास्ट में दैट MC इज इक्वल टू FC, हमारा कंक्लूजन लास्ट में ये निकला। जब हमने सपोज ये किया था तो कंक्लूजन क्या निकला, MC is equal to FC. Now is this possible? See this figure, is it possible that MC आपके FC के बराबर होगा? नहीं, बल्कि MC बड़ा है किससे, है ना, तो by seeing the figure ये जो हमारा एक कंक्लूजन निकला ये क्या, ये पॉसिबल नहीं है। अब MC और FC बराबर कब होंगे, ये पॉसिबल कब है, जब आपका M यहां से उठ के कोइंसिडेंट किसके साथ हो जाए, F के साथ हो जाए, तब जाके ये पॉसिबल है। तो मैं लिखूंगा which is impossible. Now it is possible only when, now it is possible only when M coincides with F, किसके साथ ना, तो therefore our supposition, हमारी सपोजिशन क्या थी, is wrong, this implies then क्या था, therefore EFE शॉर्ट नहीं इस पैरेलल टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि EM नहीं बल्कि EFE पैरेलल है किसको बेटा, B। 10 कंक्लूजन ये निकला हमारा ये कि अगर एक लाइन दो साइड ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, then that line must be parallel to the third side. If a line divides the two sides of a triangle in the same ratio, then that line is parallel to the third. This was the conclusion of converse of basic proportional theorem.